stereochemistry. Today we will going to discuss very important topic, that is topicity. See, in last lecture we have finished certain topic, that is plane of the especially compound having chiral plane, a compound having chiral axis, how they are chiral, and sometimes sigma plane is there, then compound may be chiral. ट्रांससाइक्लोऑक्टेन उस केस में भी आपको पता है, you have to move from non-planar portion to planar side. Whether it will take place clockwise turn, then it is called R, or it will take place anti-clockwise turn, then it is called S. But one more things you can keep in mind, that double bond should be on in the back side. Double bond है वो front side नहीं होना चाहिए. If it is in the front side, then direction will going to change. See, ये structure जो है इसमें double bond है, this is towards viewer. हमारी side है double bond. So in this case, what happens? Direction will going to change. Look at here. This is a non-planar to planar. It is clockwise direction, but after changing direction, it become anti-clockwise. So it's a S. Because double bond is on our side. ये सिंगल बॉन्ड वाली लाइन कट होती है. ओके, सिस में तो कोई चांस ही नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सॉरी ये स्टीरियो आइसोमर का, बट ट्रांसऑक्टेन है, सो उस केस में आपको ये प्लेन ऑफ काइरल प्लेन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी. Then see one more examples, that is this is a BNF. This is very important compound, that is BNF. It is a binaphthyl derivative है, it is a diphenylphosphine. 20 डाइफिनाइलफॉस्फीन है ये, तो इनका पूरा नेम देंगे तो आपको पता लगेगा, इट्स अ 20 नेप्थाइल phosphine derivative है, diphenylphosphine. So in this case what happens, see how to give its RS nomenclature. So in this case, see where you are looking the molecules, कहाँ पे आप खड़े रहेंगे, you are standing at which position, below the plane or above the plane. This is the chiral axis. Here A is not equal to B. Okay, PPH2, and on this side it's a carbon. So it is, these two are different. See, this is A is not equal to B. So how to give its nomenclature? Where you are standing, you are looking molecule from top of the plane or from below the plane. कहाँ पे खड़े रहेंगे? यहाँ पे. See, you are visualizing molecule from top of the plane. आप यहाँ पे खड़े हो, सो आपके नजदीक वाला जो ग्रुप है उसको आप वर्टिकल लाइन पे लिखते हो. यहाँ पे वो कौन सा ग्रुप आएगा, ये दोनों में से ये डार्क लाइन वाला जो ग्रुप है वो आपके नजदीक रहेगा ये. सो एक ग्रुप यहाँ पे आपके बिल्कुल नजदीक आएगा, आप यहाँ से मॉलिक्यूल को देख रहे हो, नीचे कार्बन आएगा. ओके, किसको एक नंबर देंगे सर? PPH2. ओके, इसको 1 नंबर. सो इट्स 1 नियर, इट्स 2 नियर. अभी ये दोनों में से सी PPH2 एंड यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ PPH2 है. दोनों में से आपकी राइट साइड कौन सा ग्रुप है? आप टॉप ऑफ द प्लेन खड़े हो, यहाँ से सामने से देखोगे तो वो दिखेगा कार्बन है, क्योंकि जो आप जो यहाँ आप सामने से देख रहे हो मॉलिक्यूल को तो डेफिनेटली PPH2 दिखाई देगा. बट आप तो यहाँ पे टॉप ऑफ द प्लेन खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपकी राइट साइड ये हो जाएगी. जो मेरी फ्रंट साइड, यहाँ से हमको लेफ्ट साइड जो दिखाई देती है वो आपकी राइट साइड बन जाएगी वेन एवर यू आर स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द प्लेन. तो कार्बन रहेगा आपकी राइट साइड पे और ये PPH2 लेफ्ट साइड पे. अगेन इनको 1 नंबर देंगे, सो इट्स 1F, दिस इज 2F. Now circle is draw from 1 near to 2F. It's a clockwise turn, so this is R. So this is R. See, यहाँ पे R लिखा भी है. This is R compound. चलो इस केस में कहाँ पे खड़े रहेंगे? Below the plane. So definitely. So ये एक बार स्लेट में पूछा था. सी, ये जो क्वेश्चन है वो स्लेट एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज स्ट्रक्चर दिया था, व्हाट इज इट्स नोमेनक्लेचर. सो यहाँ पे आप खड़े रहेंगे. सो आप यहाँ पे आपकी नजदीक जो ग्रुप है दैट इज अगेन PPH2, ये डार्क लाइन वाला ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन आएगा. दिस इज 1 नियर, दिस इज 2 नियर. नाउ अमोंग दिस टू ग्रुप, which group is on your right hand side? PPH2. Now it's a correct. Okay, it's a PPH2. अभी आपको जिस नॉर्मली जो आप विजुअलाइज कर रहे हो इसी तरह ही मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करना है. So this is 1F, this is 2F. Now if you draw a circle from 1 near to 2F, ऐसे 1 near to 2F, so your turn become anti-clockwise, so its name is S, and therefore this become S.
Now, what is relationship between these two? They are enantiomer. They are non-superimposable mirror image. They are enantiomer. So same structure is given here. See, this is a BNAP. So stereochemistry of BNAP is still left to discuss. तो ये अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है. दूसरी चीज एक ये भी मेरे को यहाँ आपको मेंशन करना है कि हाउ मेनी ऐसे सपोज कंपाउंड आपको पूछे कि हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग. ऐसे सपोज CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH CH ऐसे सपोज आपको कंपाउंड दे दे तो आप कैसे काउंट करोगे इस नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर? सी इस केस में एक बात याद रखना, यहाँ पे एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सो टोटल स्टीरियोआइसोमर लिखना है इसके लिए तो कितना आएगा? डबल बॉन्ड में कितना आइसोमर मिलेगा आपको? ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से A इज नॉट इक्वल टू B है, C इज नॉट इक्वल टू B है, तो आपको दो फॉर्म मिलेंगे, वन इज Z एंड अनदर इज E. बट यहाँ से कायरल सेंटर, लुक एट हियर, कायरल सेंटर इज देयर, तो कायरल सेंटर है तो अगेन दो नेम पॉसिबल हो गए. कौन कौन से दो नेम? RS, एक R पॉसिबल होगा, दूसरा S. तो एक बार Z कांस्टेंट रखना आप सी सल्किन, और यहाँ पे R वाला पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, दूसरी बार S वाला ड्रॉ करो, बाद में E के साथ R और E के साथ S आएगा, तो टोटल कितना आइसोमर पॉसिबल हो गए? फोर पॉसिबल हो गए, या चार जो लिखा है यहाँ पे वो. बट सी समटाइम्स मॉलिक्यूल इज गिवन लाइक दिस टाइप. लुक एट हियर, सी यहाँ पे दो हाइड्रोजन सिमिलर है, यहाँ इस केस में पूछे कि कितना आइसोमर पॉसिबल है, तो आप आंसर कितना लिखोगे? सो टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू ओनली 2. क्यों? R and S. R and S only because this is यहाँ दो हाइड्रोजन सिमिलर है, so this double bond is inactive, so therefore it does not give you stereoisomers. Now see, next very important topic is topicity. Okay, before starting topicity, one more concept is left, that is helical chirality. हेलिक्स है ना, वो भी कायरल है. सी हेलिक्स इज कायरल एंड फॉर हेलिक्स नेम इज गिवन. आपके जो फोर्थ टाइप की कायरलिटी है, फर्स्ट वन इज कायरलिटी ड्यू टू कायरल सेंटर, सेकंड वन इज कायरलिटी ड्यू टू कायरल प्लेन, थर्ड वन इज second one is chiral axis, third one is chiral plane, and fourth one is that is helical chirality. इस केस में क्या करना है, कैसे नेम देंगे? सो एंटर इनटू एक्सिस ऑफ हेलिक्स. इफ इट टेक, अगर वो क्लॉकवाइज टर्न देते हैं तो आपको वहां पे P लिखना है, प्लस हेलिक्स. यहाँ R और S सिंबल यूज नहीं करेंगे, बट R की जगह यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करेंगे. सो इफ इट टेक क्लॉकवाइज टर्न called plus helix, and if it take anti-clockwise turn called M helix, that is minus. ऐसी तरह से इनका नेम मेंशन करना है. सपोज ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस, दिस इज हेलिक्स. आप इनकी, ये आपकी साइड है. सी ये जो पोर्शन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये आपकी साइड है, और वो डॉटेड लाइन वाला है ना, वो पीछे की साइड है. इसी तरह सर्कुलर फॉर्म है. So if you enter into this axis of helix, this is take anti-clockwise turn, so it's a M helix, minus helix. आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, सो इट्स अ प्लस हेलिक्स. इसी तरह क्लॉकवाइज टर्न आएगा.
यहाँ पे भी ये जो आपकी साइड है, so if you enter into this axis of helix, it take clockwise turn, so it is called p helix. इनके ज्यादातर जो एग्जांपल है ना, वो फिनांथ्रिन और एंथ्रासिन, ये सब डेरिवेटिव्स है। फिनांथ्रिन की डेरिवेटिव्स से इनके एग्जांपल। सी दिस इज a structure CH3 CH3, so this is having helical structure. This is also helical structure. This is also helical structure. See, this all are the example of helical chirality. In this case, what you can do, you can enter into the axis of helix. This is a helical axis. Okay, if it take here, it take anti-clockwise turn, so it is called M helix. Here it take clockwise turn, so it is called P helix. Here it take again anti-clockwise turn, so it is called M helix. ये मैंने कैसे डिसाइड किया, तो आप यहाँ से देखो, ये डार्क लाइन वाले पोर्शन है ना, यहाँ से आप ये जो पार्ट है, यहाँ से आप बैक साइड की ओर जाते हो, ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है। सी यहाँ डार्क लाइन है ना, वहां से एंटर होके आपको जो डॉटेड लाइन है बैक साइड वाली, वहां से बाहर निकलना है, बाद में टर्न देखना है। सी यहाँ से एंटर हो, आप यहाँ से एंटर होगे और यहाँ से बाहर निकलोगे। कौन सा टर्न है फर्स्ट स्ट्रक्चर में? फर्स्ट स्ट्रक्चर में एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. यहाँ से सी आप एंटर होगे, सी यहाँ से बाहर आओगे, तो इट इज क्लॉकवाइज टर्न। ओके, Twice. तो दिस इज कॉल्ड पी हेलिक्स। यहाँ से एंटर होगे, यहाँ से बाहर आओगे, so it is again anti-clockwise turn, so it is called M helix. Okay, so it is only this example is फिनांथ्रिन डेरिवेटिव। एक बार नेट में जो मैच थी कॉलम में पूछे गए थे, आपको ये एग्जांपल दिया था, उसके सामने हेलिकल कायरलिटी लिखा था, तो ये इस केस में आएंगे। सो एक टॉपिक बाकी था जो हेलिकल वाला। नाउ द टॉपिसिटी, व्हाट इज टॉपिसिटी? सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू होमोमॉर्फिक लिगेंड। दो होमोमॉर्फिक लिगेंड्स जो है उसके बीच की रिलेशनशिप है, उसको टॉपिसिटी बोलते हैं। होमोमॉर्फिक लिगेंड किसको बोलेंगे? Homomorphic ligands means ligands which are indistinguishable when we consider it separately. Ligands which are indistinguishable when we consider it separately. आप दो लिगेंड को सेपरेटली कंसीडर करते हो तो वो इंडिस्टिंग्विशेबल है। आप H और Cl को कंसीडर करते हो तो आप ये डिस्टिंग्विशेबल है। आप इसके बीच में डिफरेंस दे सकते हो, इसकी साइज स्मॉल है, इसकी साइज ज्यादा है। ओके, इट इज ए लार्जर साइज। ये जो है इनकी साइज ज्यादा है, एक ये डिफरेंस है। दूसरा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तीसरी चीज जो इसमें है वो इसका एटॉमिक नंबर है, सिंबल, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो आप इसका डिफरेंस दे सकते हो। इट इज दिस टू लिगेंड्स आर हेटेरोमॉर्फिक। ऐसे से आप नंबर ऑफ डिफरेंस दे सकते हो। ओके, एटॉमिक नंबर ये सब। सो दीज आर नॉट होमोमॉर्फिक, इट्स हेटेरोटॉपिक, हेटेरो टाइप लिगेंड, अलग अलग लिगेंड है। होमो मींस आपको ऐसा पूछूं कि चलो ये दो हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस दो,
या तो यू कैन गिव डिफरेंस बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप और यू कैन गिव डिफरेंस बिटवीन टू ब्रोमीन। आप दे पाओगे? इस No, दोनों के बीच में डिफरेंस पॉसिबल नहीं No, है, सो sir. दिस ऑल आर कॉल्ड सी होमोमॉर्फिक। So relationship between two homomorphic ligand in an intact molecule। आपको जो मॉलिक्यूल का आप स्टडी करते हो उसमें जो दो होमोमॉर्फिक लिगेंड है उसके बीच की रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, इसको बोलेंगे टॉपिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So one things you keep in mind, see according to this topicity, ligands are of three types। One is they are homotopic, दो ligands है या तो दो ग्रुप है वो homotopic आएगा, मीन्स आइडेंटिकल। दूसरा है एनेंशियोटॉपिक। एनेंशियोमर क्या है वो आपको पता चल गया, अभी मैं एनेंशियोटॉपिक लिगेंड की बात कर रहा हूँ। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है वो टू लिगेंड्स आर डायस्टीरियोटॉपिक। होमोटॉपिक लिगेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? सो होमोटॉपिक लिगेंड मींस टर्न बाय टर्न रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय टेस्ट ग्रुप। जी, कोई एक आप टेस्ट ग्रुप सिलेक्ट कर लो, उसको टर्न बाय टर्न रिप्लेसमेंट करो। टर्न बाय टर्न रिप्लेसमेंट बाय टेस्ट ग्रुप जी gives homomer is the product, identical structure homomer, same name रहेगा homomer। homomer is the product then ligands are called homotopic। इसको आप होमोटॉपिक लिगेंड बोलोगे। सी फॉर एग्जांपल ये दोनों ग्रुप सेम है। सी ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? प्रोपेन, CH3CH2CH3। अभी आपको क्या करना है, इसी टेस्ट ग्रुप Cl ले लो आप, टेस्ट ग्रुप को एक और ग्रुप ले लो। टेस्ट ग्रुप का यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसी टेस्ट ग्रुप जी कैसे सिलेक्ट करोगे? सो टेस्ट ग्रुप जी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। आप जो ग्रुप टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट करते हो वो मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, कि ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है, इट इज अ कायरल, खुद कायरल नहीं होना चाहिए। तो आप Cl ले लो, एक बार आप HA को से Cl से रिप्लेस करो, दूसरी बार किसको रिप्लेस करोगे? HB को। चलो HA को रिप्लेस करोगे तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी आपको? प्रोडक्ट का नेम बताओ। sir. HA है, उनकी जगह आप Cl लिखोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगी उसका नेम RS पॉसिबल है तो वो लिखो, नहीं है तो इसका नेम No, कौन sir. सा आएगा? RS नेम पॉसिबल नहीं है, मीन्स प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका नेम बताओ। दिस इज सिंपली कॉल्ड 2-chloro Propane. प्रोपेन। RS नेम पॉसिबल नहीं है। चलो HB को रिप्लेस करो तो भी नेम क्या आएगा? 2 chloropropane. तो दोनों का नेम सेम है तो इसको कैसे प्रोडक्ट बोलेंगे? Homomer, sir. होमोमर। Homotopic. और वैसे भी ये दोनों है ना इनएक्टिव कंपाउंड है, तो एनेंशियोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट मिली आपको इसको होमोमर बोलेंगे। इसलिए ये जो दो लिगेंड्स है इसको क्या बोलेंगे? Homotopic, sir. होमोटॉपिक। ऐसी तरह से अगर आप मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करते तो कौन सी प्रोडक्ट मिलती? मिथाइल ग्रुप को। Homotopic. मिथाइल ग्रुप भी होमोटॉपिक रहेगी, क्योंकि यहाँ जो मिथाइल ग्रुप आप इसको एक नंबर दे दो, ये इनको बी नेम दे दो, तो आप कोई भी मिथाइल ग्रुप को आप Cl से रिप्लेस करोगे तो ऐसे प्रोडक्ट मिलेगी CH3CH2Cl, 2-chloroethane। इसको चाहे रिप्लेस करो या इसको, तो दोनों मिथाइल ग्रुप भी कैसा है? होमोटॉपिक। एनेंशियोमर प्रोडक्ट कब मिलेगी? ये दोनों ग्रुप Sir. डिफरेंट होने सर चाहिए। जब ओके, मॉलिक्यूल आरएस कायरल RS मिलेगा तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए।
तो सी एनेंशियोटॉपिक लिगेंड की अगर आपको डेफिनेशन देना है तो कैसे देंगे? टॉपिक लिगेंड टर्न बाय टर्न replacement of ligand by test group G produce enantiomer. The ligand are called enantiotopic. ओके आपको अगर एनेंशियोमर प्रोडक्ट मिलती है सो डेफिनेटली यू कॉल दैट लिगेंड्स आर एनेंशियोटॉपिक. इस केस में आपको ये दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे COOH एंड CH3. नाउ इफ यू वांट टू चेक HA एंड HB so definitely you can replace it by test group Cl. So what happens when you replace HA? So you are getting, see, this chiral product. Look at here. One Cl is on the right hand side. And second times आप HB को replace करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा. दोनों प्रोडक्ट कैसी है, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप कौन सी है? Enantiomer, sir. Very good. So what's about two ligands? They are Enantiotopic. enantiotopic. Good. So Enantiotopic. these two products are enantiomer. So enantiomer. So these two ligands are enantiotopic. HA and HB are called enantiotopic. What happens for diastereotopic ligand? अगर आपको प्रोडक्ट डायस्टीरियोमर मिलती है तो उस केस में उसको हम डायस्टीरियोटोपिक लिगेंड बोलेंगे. कैसे डिफाइन करेंगे? टर्न बाय टर्न रिप्लेसमेंट ऑफ ligand by test group G produce diastereomer. The ligands are called diastereotopic. ऐसी तरह. तो उस केस में से डायस्टीरियोमर आपको चाहिए प्रोडक्ट, तो आप डायस्टीरियोमर के लिए मिनिमम 2 कायरल सेंटर चाहिए. तो आप एक कायरल सेंटर ऐसे पहले से ही मॉलिक्यूल में ले लो. ऐसे एक कायरल सेंटर ऑलरेडी है. अभी आपको HA और HB चेक करना है तो उस केस में डेफिनेटली आप इसको Br से रिप्लेस करो, बिकॉज जो टेस्ट ग्रुप आप सिलेक्ट कर रहे हो दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. तो उस केस में आपको 2 प्रोडक्ट ऐसे मिलेगी. एक जो ऑलरेडी कायरल सेंटर है वो चेंज नहीं होगा. एक ऑलरेडी जो कायरल सेंटर है दैट डज नॉट गोइंग टू चेंज. ये ऐसे ही रहेगा, दोनों में सेम रहेगा. सो सी 50% पार्ट सिमिलर रहेगा. दूसरा जो 50% पार्ट है वो डेफिनेटली मिरर इमेज रहेगा. दूसरा जो 50% पार्ट है उसमें आप HA को रिप्लेस करते हो तो Br जो है वो राइट साइड आएगा. HB को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो so Br comes on left hand side. So दूसरा 50% पार्ट मिरर इमेज है. तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? Diastereomer, sir. They are Diastereomer. diastereomer. And therefore these two ligands are diastereotopic. टेक्निक क्या आएगी? शॉर्ट समरी ये है, सपोज A इज इक्वल टू बी एंड यहाँ पे C एंड D है. अगर A इज इक्वल टू B होता तो C एंड D कैसे बनेगा? Then C and D are Homotopic. homotopic. Good. If A is not equal to B, then C and D are, Enantiotopic. it may be enantiotopic or diastereotopic if other chiral center is not there. If other chiral centers are absent, okay, and if
chiral center are present, then diastereotopic. it's a diastereotopic. No possibility आएगी ऐसे सी. So A is not equal to B है तब. This is a short summary. Now see एक सिमेट्रिक क्राइटेरिया है जो साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए टॉपिसिटी में सिमेट्रिक क्राइटेरिया काम लगेगा. इसका आपको यूज करना है. सिमेट्री क्राइटेरिया, जो सिमेट्री है ना, इसको दो क्लास में डिवाइड कर दिया है. सिमेट्री एलिमेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए दिस इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेनेवर इफ यू लुक एट फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर. सो दो तरह की सिमेट्री है, काइंड 1 एंड काइंड 2 सिमेट्री. काइंड 1 जो है इसमें आएगा, हियर इट इंक्लूड ओनली CN एक्सिस. काइंड 2 में आएगा सिग्मा प्लेन SNI. तो अगर आपके जो दो लिगेंड्स है, सी इफ ligands are correlated by kind 1 symmetry are called homotopic. इसको क्या बोलेंगे? Homotopic. And if ligands are correlated by kind 2 symmetry are called anisotropic. Okay, and ligand does not have any kind of symmetry. Ligands does not have any kind of symmetry are called diastereotopic. ये क्राइटेरिया का यूज करके भी आप कर सकते हो. अभी देखते हैं, अगर फर्स्ट काइंड सिमेट्री है उसमें CN एक्सिस है वो कवर होगी. तो अगर CN एक्सिस से दो लिगेंड कोरिलेटेड है सो दे आर कॉल्ड होमोटॉपिक. अगर वो सिग्मा प्लेन से कोरिलेटेड है तो दैट इज एनिसोटॉपिक. एंड एक भी टाइप की सिमेट्री नहीं है तो उस केस में डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएगा. सी दिस इज अ साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेनॉन. ये कार्बन 2 है, HNHB. यहाँ पे भी ये कार्बन 2 होगा. इस साइड से नंबर देंगे तो आप HCNHD. यहाँ दो लिगेंड है HENHF. Now you tell me relationship between HA and HC, HA and HD, HB and HD, HB and HC. ये चार के बीच में सी रिलेशनशिप चाहिए. तो आप यहाँ से C2 एक्सिस ऐसे लगे. ये मॉलिक्यूल को बेटर है आप ऐसे ड्रॉ करो तो ज्यादा समझ में आएगा. सी दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज अगेन अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन. इसी तरह यहाँ पे HA अबव द प्लेन है, यहाँ पे HC अबव द प्लेन है. सपोज दिस इज HA एंड HC. HB बिलो द प्लेन है, यहाँ HD बिलो द प्लेन है. दोनों सेम ही है. आप बताओ मेरे को चलो HA को HC की जगह ले जाना है, कैसे आएगा? सिग्मा प्लेन करेंगे या C2 एक्सिस? सर सिग्मा. ये ऊपर के प्लेन में तो ऐसे सिग्मा प्लेन डाल दो, मिरर इमेज लिख दो. ओके, सो इसी तरह से यहाँ मिरर इमेज लगे. सो HA इज अबव द प्लेन है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे अबव द प्लेन मिलेगी है. एंड दिस इज बिलो द प्लेन, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे भी बिलो द प्लेन मिलेगी. तो आपको HA, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन HA एंड HC? सिग्मा प्लेन है, सेकंड काइंड सिमेट्री है, दे आर एनिसोट्रोपिक. गुड, एनिसोट्रोपिक. व्हाट्स अबाउट HA एंड HD? HA ऊपर है, D नीचे है. यहाँ सी होमोटॉपिक, क्योंकि 180 पे टर्न देंगे तो ये ऊपर वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे, यहाँ सामने की साइड. सो दे आर रिलेटेड बाय CN एक्सिस, सो दे आर कॉल्ड होमोटॉपिक. व्हाट्स अबाउट HB एंड HD? B भी नीचे है, D भी नीचे है, एनिसोटॉपिक. एनिसोट्रोपिक आएगा.
What's about B and C? Homotopic. Homotopic, sir. चलो इसका ये जो है ना, ये कंसेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर ऑफ सिग्नल मिलते हैं आपको H1 NMR में, तो ये कंसेप्ट वहां पे भी यूज हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सी दिस कंसेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा है होमोटोपिक एंड एनिसोटोपिक लिगेंड। Ligands are isochronous, वो आइसोक्रोनस होता है, दैट मीन्स दे गिव सिंगल सिग्नल इन H1 NMR, एक ही सिग्नल देगा, दो लिगेंड अलग अलग सिग्नल नहीं देंगे। बट डायस्टीरियोटोपिक लिगेंड are anisochronous, means gives separate signal. In H1 NMR spectroscopy वो अलग अलग सिग्नल देगा, सेपरेट सिग्नल देगा। तो इस केस के हिसाब से आप नंबर ऑफ सी सिग्नल भी डिसाइड कर सकते हो। आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ बताऊँ, ये जो CH3 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये CH2, यहाँ पे Cl है। तो चलो आपको पता है इस मॉलिक्यूल में CH3 CH2 CH2 Cl 4 टाइप के प्रोटॉन है, तो आपको 4 सिग्नल मिलेगा। ये 1 2 3 और 4 सिग्नल मिलेगा। क्यों 4 सिग्नल मिले आपको? क्योंकि यहाँ पे 4 टाइप के प्रोटॉन है। अभी आप बताओ मेरे को व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू प्रोटॉन्स, टू मिथिलीन प्रोटॉन्स, कार्बन नंबर 2 पे है, उसके बीच में कौन सी रिलेशनशिप होगी? होमोटॉपिक, एनिसोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक? So diastereotopic. Anisotopic. सी एनिसोटॉपिक होगा। कैसे पता चला? सर ये डायस्टीरियोटॉपिक इसलिए नहीं है, इसमें काइरल सेंटर नहीं है। मॉलिक्यूल में है काइरल सेंटर? नो। एक भी काइरल सेंटर नहीं है। अभी इसको आप रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली काइरल सेंटर प्रोड्यूस होगा। इस साइड इथाइल ग्रुप है, इस साइड CH2Cl है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, इज नॉट इक्वल टू बी हो गया। तो ये पूरा ग्रुप अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पे काइरल सेंटर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। तो दो काइरल सेंटर मिलके आप टर्न बाय टर्न रिप्लेस करोगे, तो इसलिए एनिसोटॉपिक हो गया। बट एनिसोटॉपिक लिगेंड्स आर एनाइसोक्रोनस, इसलिए वो एक ही सिग्नल देंगे। इसलिए दोनों लिगेंड अलग अलग सिग्नल नहीं देंगे, बट एक ही सिग्नल देंगे। सिमिलर वे दिस टू आर आल्सो एनिसोटॉपिक, तो वो भी एक ही सिग्नल देंगे। इसलिए जो पूरा मॉलिक्यूल है वो कितने सिग्नल देंगे? 4। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, अगर sir. चलो यहाँ पे सपोज मैं सेम एग्जांपल ऐसे यहाँ पे आपको देता हूँ। इसमें सी काइरल सेंटर है, लुक एट हियर। इस केस में पूछूं कि आपको कितने सिग्नल मिलेंगे H1 NMR में, तो एक ऑलरेडी काइरल सेंटर है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आप कोई भी हाइड्रोजन एक को रिप्लेस करोगे तो बाकी दो सेम रहेंगे, तो ये तीनों तो होमोटॉपिक ही रहेंगे, एक ही सिग्नल देगा। ये भी एक सिग्नल देगा। बट यहाँ दो हाइड्रोजन है, वो सेम सिग्नल नहीं देंगे, क्योंकि वो एक काइरल सेंटर होने की वजह से ये डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे, तो अलग अलग सिग्नल देंगे। तो यहाँ आपको कितने सिग्नल मिलेंगे? 2 सिग्नल C and D। यहाँ पे भी आपको 2 सिग्नल E and F, और यहाँ पे एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल मिलेंगे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर काइरल सेंटर जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंस है, तो उस केस में डेफिनेटली आप डायरेक्शन चेंज करो। तो उस केस में आपको डेफिनेटली सी जो है ना वो चेंज करना है, सी। अगर इस केस में काइरल सेंटर है तो आपको जो सिग्नल है वो ज्यादा मिलेंगे। ये सी साइक्लोप्रोपेन है, ओके। इसका आप क्लोरीनेशन करते हो, मोनोक्लोरो सपोज साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है। इसका आप फर्दर क्लोरीनेशन करते हो, तो अगर वो क्लोरीनेशन यहाँ पे होता है तो ये डाइक्लोरो ऐसे आएगा। एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये है।
दूसरी पॉसिबल प्रोडक्ट ये है, दोनों Cl ऐसे आएगा अलग अलग कार्बन पे। तीसरी पॉसिबल प्रोडक्ट ये है, these are the various possible product. ओके, प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3। चलो 1 कितने सिग्नल देंगे H1 NMR में? ऊपर नीचे दोनों Cl है, तो ये हाइड्रोजन भी Cl से नजदीक है, ये हाइड्रोजन HCl से नजदीक है, तो दोनों सिमिलर हो गए। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन सिमिलर हो जाएंगे, तो ऑल 4 हाइड्रोजन्स आर सेम, ऑल 4 हाइड्रोजन्स आर होमोटॉपिक, all 4 hydrogens are homotopic, so you are getting only One signal. one signal. But what's about this one? यहाँ पे से आप देखोगे तो पता Two चलेगा signal. दोनों Cl जो है वो कैसा है, दोनों Cl, ये A एंड B सर वो हाइड्रोजन सिग्मा प्लेन। नहीं, वो तो सही है। H एन HB के बीच में कौन सी रिलेशनशिप आएगी? H एन HB एनएंशियोटॉपिक। एनेंशियोटॉपिक, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो दोनों एक ही सिग्नल देंगे, क्योंकि एनेंशियोटॉपिक लिगेंड है, वो एक सिग्नल देते हैं। चलो HCnHD, इसका केमिकल एनवायरनमेंट देख लो। Anisotropy. वेरी गुड, नहीं एनेंशियो नहीं है, वो किसी ने बताया डायस्टीरियोटॉपिक एग्जैक्टली। इसका केमिकल एनवायरनमेंट देख लो आप, केमिकल एनवायरनमेंट एनेंशियोटॉपिक का सेम रहता है। यहाँ केमिकल एनवायरनमेंट मींस ये क्यों कायरल था, तो ये जो Cl है ना, वो इधर डार्क लाइन पे होगा या तो डॉटेड लाइन पे होगा। सपोज ये आपकी साइड है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन आपकी साइड होगा वो Cl से नजदीक होगा, और जो हाइड्रोजन पीछे की साइड है वो Cl से दूर रहेगा। तो उस केस में दोनों हाइड्रोजन अलग अलग थे, इसलिए आपको दो सेपरेट सिग्नल मिल रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था सी। तो अगर कायरल सेंटर है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे लागू पड़ती है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप अप्लाई करोगे, सो डेफिनेटली एक Cl के नजदीक आएगा वो अलग सिग्नल देगा, जो Cl से दूर रहेगा वो अलग देगा। यहाँ दोनों Cl है वो टॉप ऑफ द प्लेन है, तो HCa इट इज वेरी क्लोज टू दोनों Cl, देखो इट इज वेरी क्लोज टू 2Cl, whereas HD इज अवे फ्रॉम Cl, ये बिलो द प्लेन है, दोनों Cl एबो द प्लेन है। तो इस केस में दोनों हाइड्रोजन जो है वो ये कैसा आएगा, दोनों हाइड्रोजन, दिस टू आर डायस्टीरियोटॉपिक। Anisotropy. ट्रांस एंड ट्रांस आइसोमर डायस्टीरियोमर है, वो आपको पता है। HC से आप Br से रिप्लेस करोगे HC को, तो सिस प्रोडक्ट मिलेगी दोनों Cl को, और आप HD को Br से रिप्लेस करते तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी, इसलिए डायस्टीरियोटॉपिक है। तो HC एंड HD गिव्स सेपरेट सिग्नल, 2 सिग्नल। तो कितने टोटल सिग्नल मिलेंगे? देयर आर 3 signals. What's about this one? H A and B कैसे है? H A and HB होमोटॉपिक सर। होमोटॉपिक, सो ये एक सिग्नल देंगे। What's about HC and HD? Are also होमोटॉपिक। होमोटॉपिक, क्योंकि इसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। HCl को C से, तो HD इसको C से रहेगा, HCl इसको ट्रांस है, तो ACl इनको ट्रांस रहेगा। तो दोनों का जो सेम है, इसलिए C एंड D एक सिग्नल देंगे, B एंड B एक सिग्नल देंगे, तो टोटल कितने सिग्नल मिलेंगे आपको? टोटल 2 सिग्नल। तो आपको सी यही चीज देखना है कि मॉलिक्यूल में कायरल पार्ट है या नहीं। कायरल पार्ट होता है तो डायस्टीरियोमर की पॉसिबिलिटी आती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है फेसिस, तो कीटोन या तो डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड, स्पेशली इन कीटोन दैट इज हैविंग फेसिस। सो फेसिस में भी होमोटॉपिक हो सकते हैं 2 फेस, एनेंशियोटॉपिक हो सकते हैं, एंड डायस्टीरियोटॉपिक। ओके, 3 पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास ये ऐसे सिमेट्रिकल कीटोन है, तो यहाँ कौन सी एक्सिस आएगी एलिमेंट? CN एक्सिस आएगी, सिमेट्री ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसका फेसिस कैसा रहेगा? इसका 2 फेस होता है, टॉप फेस एंड बॉटम फेस। ये फेस कैसा रहेगा? आप एक काम कीजिए, इसको टर्न बाय टर्न रिएक्शन कीजिए, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, लाइक यूजिंग CH3MgBr। इसका 2 फेस होता है, अगर आप टॉप फेस से अटैक करते हो तो इसका कन्वर्जन OH में हो जाएगा, और या सपोज आप इस फेस पे अटैच करते हो,
अटैक CH3 माइनस का बैक साइड से करते हो तो ऐसे प्रोडक्ट मिलेगी, और अगर आप CH3 न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट फेस से करते हो तो ऐसे प्रोडक्ट मिलेगी। ये दोनों प्रोडक्ट कैसी है? व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? Enantiomer. एनेंशियो कायरल सेंटर है। मेरे को तो नहीं ये सर। इथेनॉल सिंपली दिखाई देता है, आर और एस नेम नहीं दे पाएंगे, दो हाइड्रोजन सेम है। ये प्रोडक्ट कैसी है? Homotopic. होमोमर्स है, तो इनके फेसिस कैसा रहेगा? Homotopy phases. होमोटॉपिक रहेगा। बट अगर चलो आपको एसिमेट्रिक कीटोन होता तो, सपोज ऐसे कीटोन है तो उस केस में डेफिनेटली आप ग्रिग्नाइट रिएक्शन करोगे, दो अलग अलग फेस से आप अटैक करोगे, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से आप रिडक्शन करते हो, तो H माइनस जो है वो एक बार फ्रंट फेस से अटैक करेगा, दूसरी बार बैक साइड से अटैक करेगा। तो इस केस में आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी सी, ये एक बार H टॉप फेस से अटैक करेगा, दूसरी बार H ऐसे बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये दो प्रोडक्ट मिलेगी। नाउ यू टेल मी व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट? Enantiomer. दे आर एनेंशियोमर बिकॉज एक आर है और दूसरा एस है, तो ये इनके जो फेसिस है वो एनेंशियोटॉपिक हो जाएंगे। सिंपल सिमेट्रिकल कीटोन है तो होमोटॉपिक फेस, एसिमेट्रिकल कीटोन है तो एनेंशियोटॉपिक। एंड अगर एसिमेट्रिक कीटोन विथ कायरल सेंटर है, लुक एट हियर, सी एसिमेट्रिक कीटोन विथ कायरल सेंटर, अगर आप इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करते हो तो कैसी प्रोडक्ट मिलेगी आपको? एक कायरल सेंटर से चेंज होने वाला नहीं है, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। ये आर है तो आर रहेगा, एस है तो एस रहेगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक बार एच जो है वो टॉप साइड से अटैक करेगा, दूसरी बार एच जो है वो बॉटम फेस से अटैक करेगा इसी तरह। तो इनके फेस जो है आपको ये दो प्रोडक्ट मिलेगी। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? ये दोनों Diastereomer. प्रोडक्ट है वो डायस्टीरियोमर है, सो देयरफॉर इट्स फेसिस आर डायस्टीरियोटॉपिक। तो सिमेट्रिकल कीटोन है तो फेस कौन सा आएगा? होमोटॉपिक। एसिमेट्रिकल है तो कायरल सेंटर नहीं है तो एनेंशियोटॉपिक, अदरवाइज डायस्टीरियोटॉपिक फेस। So it is a very simple job, but see our point is, our target is to give its name. अभी आप जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हो तो आप दो तरह के अटैक करोगे, एक आप डार्क लाइन से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को एंटर करोगे। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऐसे आप डार्क लाइन से आपकी साइड से अटैक करते हो तो इसको कौन सा फेस बोलते हैं? अटैक इज मेड फ्रॉम विच फेस? टॉप फेस। और आप इसको बैक साइड से अटैक करते हो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? अटैक इज मेड फ्रॉम बॉटम फेस। चलो ये फर्स्ट वाले केस में कौन सा फेस में अटैक है? फर्स्ट में, ऊपर वाली प्रोडक्ट में अटैक इज मेड फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल कहां से एंटर होता है? टॉप फेस या टॉप फेस? क्योंकि डार्क लाइन वाला ग्रुप है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये टॉप फेस की प्रोडक्ट है, और ये कौन से? बॉटम फेस की है। अब इसी एक कीटोन है, उनका जो आपको नेम देना है इसके फेसिस के नेम, तो वो फेसिस के नेम जो है वो दो तरह के नेम हो सकते हैं, आरई फेस एंड एसआई फेस। कीटोन के जो फेसिस है उनके नेम जो है, नेम ऑफ द फेसिस में बी आरई और एसआई। ये कैसे पता लगेगा आरई या एसआई है? तो आपको टॉप फेस का पहले नेम देना। टॉप फेस मीन्स आपको जो नॉर्मली कीटोन जैसे दिखाई देता है वो टॉप फेस है। सी ऐसे आप देखते हो इस कीटोन को, तो ये आपकी फ्रंट साइड है। आप जिस साइड से खड़े हो इस साइड के हिसाब से आपको ऑक्सीजन किस साइड दिखाई देता है? आपकी राइट साइड या लेफ्ट साइड? Right side. राइट साइड, तो वो टॉप फेस रहेगा। बट कोई आदमी सपोज मोबाइल के पीछे या तो लैपटॉप के पीछे की साइड से देखेगा ये मॉलिक्यूल को,
तो इनको ऑक्सीजन किस साइड दिखाई देगा? तो लेफ्ट आपको से। वो उनको तो लेफ्ट left साइड side. दिखाई देगा। तो वो है ना बॉटम फेस है, तो जैसे बॉटम फेस का नेम यहाँ पे हम इसका मेंशन नहीं करेंगे, बट आपका जो टॉप फेस आता है उनका जो भी नेम है उनसे अपोजिट बॉटम फेस का नेम रहेगा। अभी कीटोन का नेम देने के लिए इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। ऑक्सीजन को नंबर 1 दे दो प्रायोरिटी के हिसाब से, बाकी जो दो ग्रुप है इसमें फिनाइल को नंबर 2, इनको नंबर 3 दे दो। चलो सर्कल ड्रॉ करो 1 2 2 2 2 3। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है या Anti-clockwise. एंटी एंटी क्लॉकवाइज? तो ये जो फेस है इनको एसआई फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट्स अ एसआई फेस, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ यू टेल मी, ये जो आपने नॉर्मली इस कीटोन को विजुअलाइज किया है, आपको अपने फ्रंट साइड से विजुअलाइज किया है, तो यहाँ जो एसआई फेस है वो कौन सा फेस होगा? एसआई फेस बिकम, इस फेस को कौन सा फेस बोलेंगे? टॉप फेस। आपका जो नेम आता है जो एसआई फेस का, जो टॉप फेस का, वो ऐसा ही है सिनिस्टर, इसलिए इसको टॉप फेस बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टर्न है इसलिए। ये एसआई फेस है। इसी तरह तो इनका इनका बॉटम वाला फेस कौन सा आएगा? चलो इसका नेम बताओ। बॉटम फेस ऑफ दिस कीटोन इज, कौन सा फेस आएगा? Ari. आर ई फेस आएगा। ऐसे आपको डिसाइड करना। सपोज ऐसे कीटोन दिया है तो लुक एट हियर, व्हाट्स अबाउट इट टॉप फेस? टॉप फेस चाहिए, टॉप फेस का नेम बताओ। किसको नंबर 1 देके? नंबर 1 किसको देके? Sir, oxygen. ऑक्सीजन। 2 नंबर? P9. फिनाइल। चलो सर्कल ड्रॉ करो 1 2 2 2 2 3। Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है तो ये टॉप फेस कौन सा SI. आएगा? एसआई फेस SI रहेगा। तो आपका जो Side. बॉटम फेस है वो Ari face. आर ई फेस आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप, चलो इसका नॉर्मल फेस कौन सा है बताओ मेरे को इस कीटोन का। 1 नंबर किसको देंगे? ऑक्सीजन को। 2 नंबर कार्बन के साथ ऑक्सीजन इनको, या कार्बन के साथ कार्बन इनको? 2 नंबर किसको देंगे? सर कौन सा कंपाउंड है? ये कीटोन इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ऊपर। हम्म। सर कार्बन के साथ ऑक्सीजन वाले को। इसको 2 नंबर देंगे और इनको 3 नंबर। सो व्हाट इज दिस सर्कल? नॉर्मल फेस क्या है इनका? ये क्लॉकवाइज टर्न है तो री फेस। ये आर ई फेस है। और री फेस जो है ये कौन सा फेस होगा अभी? आर ई फेस टॉप फेस है। ऐसा ही फेस है वो बॉटम फेस हो जाएगा। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिली है वो कौन से फेस से प्रोडक्ट मिली है? अगर टॉप फेस नहीं लिखना है तो टॉप फेस का नेम कौन सा है? आर ई फेस। एंड ये जो प्रोडक्ट मिली है, इट इज प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय अटैक इज मेड फ्रॉम ऐसा ही फेस। इसमें पता चल गया आपको कीटोन में? यस सर। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, वो तो और पता लगेगा। CCH3, सपोज ये रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं आपको ऐसे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ, CH3 फिनाइल। चलो कौन से फेस से अटैक हुआ होगा? टॉप फेस या बॉटम फेस? ये मेजर प्रोडक्ट है सपोज, तो अटैक कहाँ पे हुआ होगा? टॉप फेस से या सर बॉटम बॉटम फेस? फेस। बॉटम, क्योंकि बॉटम। हाइड्रोजन बैक साइड डॉटेड लाइन है। अगर इसका नेम देना है तो इसका नेमिंग करना है तो आर ई फेस से अटैक हुआ है एस आई फेस से वो बताना है तो आपको कीटोन का नेम देना पड़ेगा। इस केस में आप क्या करोगे? पहले कीटोन जो है आपका उसका टॉप फेस का आप नेम देंगे, उस हिसाब से आपको बॉटम फेस का नेम मिल जाएगा। टॉप फेस का नेम ऐसे देंगे, सी दिस इज ए नेम ऑफ टॉप फेस। टॉप फेस कैसा रहेगा? साइड। आर ई सर एंटी-क्लॉकवाइज 3 फेस। ओके, आर ई फेस। तो आपका बॉटम फेस कौन सा रहेगा? एस आई फेस। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज मेड फ्रॉम विच फेस?
साई फेज। ओके, साई फेज। अगर मेरे को चलो आरी फेज की प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट कैसे आएगी? सर हाइड्रोजन सॉलिड लाइन में और OH ब्रेक लाइन में। हाँ। दिस इज ए प्रोडक्ट obtained by RE phase. Okay, this is RE phase. Attack is made from RE phase. तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो इस हिसाब से ये कीटोन का जो फेस आएगा। अभी कौन सी प्रोडक्ट है दोनों में से मेजर प्रोडक्ट है, उसके लिए हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज फेल्किन-आन रूल, क्रेम रूल एंड वन शॉट टेक्निक भी है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, पर उसमें बाद में जाएंगे। उससे पहले एक और चीज देखना है, वो देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन से नेट एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे HA और यहाँ HB, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप ऐसे दिया है आपकी साइड। What is relationship between HA and HB? They are homotopic, anisotropy or diastereotopic? सर ये इनैनिसोटॉपिक Diastereotopic वाले का। अभी देखो यहाँ पे आपका ये पार्ट कायरल है, लुक एट हियर। बट तो आपको ये चेक करना है, इसी मॉलिक्यूल में ये दोनों, अभी ये दोनों अलग अलग है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ COOH है। सो A इज नॉट इक्वल टू CB हो गया। इसलिए C और D के लिए दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दे आर एनिसोटोपिक और डायस्टेरियोटोपिक। ये चीज सब पता चल गया आपको। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, इसलिए दो पॉसिबिलिटी रहेगी, आइदर दे आर एनिसोटोपिक और डायस्टेरियोटोपिक। ओके, ये चीज आपको पता चल गया। अभी आपको ये देखना है, इस मॉलिक्यूल में सपोज कायरल पार्ट प्रेजेंट है तो ये लिगेंड डायस्टेरियोटोपिक हो जाएगा, और कायरल पार्ट एब्सेंट है तो एनिसोटोपिक हो जाएगा। अभी इसके लिए आपको यहाँ पे देखना चाहिए, दो कायरल सेंटर तो है, बट ये मिथाइल ग्रुप कौन सी साइड है, आपकी साइड है या बैक साइड? मिथाइल ग्रुप मेरे साइड सर, अपर साइड, फ्रंट साइड। और ये मिथाइल ग्रुप भी फ्रंट साइड पे है। तो आप यहाँ पे प्लेन रख दो, मिरर इमेज हाँ, मिलेगी या नहीं सिग्मा मिलेगी? प्लेन। यस सर, आ रहा तो है। ये रोटेशन क्या हो जाएगा दोनों का आपस में? इनैनिसोटॉपिक नहीं, ये रोटेशन क्या हो जाएगा, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड का मिरर इमेज है तो कैंसिल हो जाएगा सर। कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो ये मेसो पार्ट हो गया, तो ये अकाइरल पार्ट हो गया, ऐसा समझ लो। इट्स अकाइरल पार्ट। तो अकाइरल पार्ट है तो ये दोनों एनिसोटोपिक हो जाएगा। बट इस केस में क्या है, इस केस में आप सिग्मा प्लेन ले पाओगे? नहीं नहीं। तो ये पार्ट कौन सा पार्ट रहेगा? कायरल कायरल। तो ये दोनों डायस्टेरियोटोपिक। डायस्टेरियोटोपिक। एक ये चीज है। अगर आपको इस ऐसे समझ में नहीं आता है तो आर की मिरर इमेज ऐसे, वो आपको पता है। व्हाट इज मिरर इमेज ऑफ आर? इट्स एस। तो आप RS नोमेनक्लेचर दे दो, एक साइड R है और एक साइड एस है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे से हाइड्रोजन आप ऐसे ले लो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आप ऐसे ले लो। अभी एक नंबर किसको देंगे यहाँ पे? नाइट्रोजन को। दो नंबर किसको देंगे? ये CH2 को। तीन नंबर मिथाइल को, चार नंबर हाइड्रोजन को। सर्कल ड्रॉ करो, 1 2 2 2 2 3। सर्कल ड्रॉ करो आप, 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये 1 नंबर है, वहां से 2 जाना है, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एस आ जाएगा। ओके, इस साइड वाला पार्ट एस है। अभी इस साइड का नेम बताओ। एक नंबर अगेन नाइट्रोजन, दो नंबर इस CH2 को, तीन नंबर मिथाइल को, चार नंबर हाइड्रोजन को। सर्कल ड्रॉ करो। आर आएगा। तो सी मिरर इमेज ऑफ आर इज एस, इसलिए ये कैंसिल हो गया। बट इस केस में ये डार्क लाइन वाला तो आर है ही इसमें भी यहाँ आप हाइड्रोजन को डार्क लाइन पे लेंगे तो डेफिनेटली वो एस होगा, बट डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी तो ये भी आर हो जाएगा। सो दोनों साइड आर आर है, इसलिए ये पार्ट कायरल हुआ, इसलिए ये दोनों डायस्टेरियोटोपिक हो गए। इस केस में दोनों एनिसोटोपिक है। ओके, सो देखना है मॉलिक्यूल में अगर कायरल, बोलिए सर। यहाँ पे मुझे जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे C2 एक्सिस नहीं होगा क्या? मतलब
वो जरूरत नहीं है सर C2 एक्सिस की, ऐसा कि आप ले सकते हो, बट यहाँ ये CWH है तो पूरा C डिस्टर्ब हो जाएगा। CWH ग्रुप हाँ। ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो आप C2 एक्सिस Yes. ऐसे लेके तो ये इस साइड चले जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ नहीं। इतना देखो जो अपर वाला पार्ट है उसमें कायरलिटी है या नहीं, ओके मैं सर, वो ओके पूछ सर। रहा हूँ। बाकी सब तो सेम है, तो अपर वाला पार्ट में कायरलिटी या तो कैंसिल होनी चाहिए या तो इसमें होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों मिथाइल ग्रुप आपकी साइड है तो डेफिनेटली वो अकायरल हो जाएगा। ये कोई ऐसा, ये इस एग्जांपल की तरह एग्जांपल है सी, जैसे यहाँ पे हम दो कायरल सेंटर है, बट दो OH ग्रुप सेम साइड लिखते हैं तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी सी, कायरल प्लेन। एक का नेम R आएगा, दूसरे का S आएगा, ये मेसो कंपाउंड हो जाएगा, सिग्मा प्लेन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड अकायरल। बट ऐसी सिचुएशन में OH लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ OH राइट हैंड साइड है, सो यू कैन नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, दोनों का नेम सेम आएगा, आइदर इट में बी RR और इट में बी SS। तो इसी तरह यहाँ पे दोनों का नेम सेम है तो कायरल है, तो ये डेफिनेटली दोनों डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। अलग अलग है तो एनेंशियोटॉपिक। वैसे भी देख लो आप, ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, मिरर प्लेन है, तो पूरा पार्ट अकायरल हो जाएगा। तो आपको यहाँ नाइट्रोजन है उतना ही समझना है सी, ऊपर वाला पार्ट अकायरल हो गया, अभी आपको इतना ही देखना है सी। अभी आप इसको रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली कायरल सेंटर मिलेगा, एनेंशियोमर मिलेगा। ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, इसलिए दोनों एनेंशियोमर देंगे क्योंकि बाकी पोर्शन तो अकायरल है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, गुड। यस सर। सो दिस इज अबाउट सी टॉपिसिटी। अभी ये शाम की लेक्चर में सी वी विल सी दी Creme rule, Felkinan rule, and how using short technique how to write down direct measure product, okay, from in any given reaction, ये देखेंगे। एंड कल मॉर्निंग में सारे पूछे गए एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 अभी तक हमने आज जो है वो 5th लेक्चर खत्म किया है, कल 6, आज शाम को 6 लेक्चर लेंगे, और परसों सॉरी कल ही 7th लेक्चर लेंगे। उसमें सारे पूछे गए एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो उस हिसाब से आराम से हम यूनिट इनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक फुल 15 लेक्चर्स का प्रेजेंटेशन दूंगा और एक ये प्रोवाइड करूंगा। तो दोनों प्रेजेंटेशन में सेम ही कंटेंट है सी, बट वो वाला जो था उसमें मैंने 15-16 लेक्चर में जो चीज कवर की है वो यहाँ इस प्रेजेंटेशन के जरिए 6 to 7 लेक्चर में कवर किया है, बाकी कुछ नहीं है। और जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं वही कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन किया था। आप अच्छी तरह से आंसर सब कुछ दे रहे हैं, सो दैट इंडिकेट यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.